So I am Professor Nitish Kumar Rohatgi from Simage Group of Institution. Today we are going to talk upon a very interesting and very buoyant topic for today, and that is foreign exchange. A brief introduction, two or three main things will be covered in this small video. One is what is foreign exchange, the second one is what is foreign exchange market, and lastly we'll be talking about the fluctuations in the foreign exchange rates. That is, as you must have heard about uh, currency appreciation and currency depreciation. तो टू स्टार्ट विथ व्हाट इज फॉरेन करेंसी. जैसा हम सभी को पता है कि एवरी नेशन, एवरी इकोनॉमी हैज इट्स करेंसी. Say for example, if I am in India and the currency of India is rupees, Indian rupee. So whatever currency other than the Indian currency we are referring to is foreign exchange. Whatever currency other than the Indian currency is being referred to as is called foreign exchange. Say for example, US dollar, German mark, yeah, European euro, Japanese yen. These are all foreign exchange for us, for an Indian resident. Now, when we talk about foreign exchange, why do we require foreign exchange? Just few lines upon it. We require foreign exchange because most of the modern economies are open in nature. And as they are open in nature, they trade. That is, they trade in terms of export, import, or entry port. Entry port is what? First you import, then you process it, complete it into finished goods, and then export it. So in this regard, we use the foreign exchange. Say for example, if we in India are importing, we need to pay the country from which we are importing in their currency, right? And similarly, if somebody in US is importing from India, they will require to pay us in our currency, right? So this is what is known as foreign exchange. Foreign exchange is nothing, again, just to have a recap, foreign exchange is all the currency other than the domestic currency is foreign exchange. Now, what is foreign exchange market? Foreign exchange market is a market wherein the foreign currencies are being traded, are being transacted, are being exchanged. It is the only market wherein we are transacting the foreign currencies. That is, we are buying foreign currency and selling foreign currency. No other market, दुनिया में कोई भी मार्केट अगर आप लें तो वहां पर आप कमोडिटी के साथ करेंसी का एक्सचेंज करते हैं. आप करेंसी ले मतलब कमोडिटी लेते हैं, उसके बदले में करेंसी देते हैं, या सर्विसेज लेते हैं, उसके बदले में करेंसी देते हैं. लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एकमात्र ऐसा मार्केट है जहां पर आप क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के बदले या एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी को ट्रांजैक्ट करते हैं. और क्या आगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में कहा गया कि इट इज द मार्केट विच इज 24/7, दैट इज इट इज ऑपरेटिंग 24 आवर्स, राइट. यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि एक देश की करेंसी दूसरे देश के मुकाबले फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे हो रही है. आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सचेंज रेट्स आर नॉट स्टैटिक, दे आर ऑलवेज चेंजिंग. तो दिस इज व्हाट इज known as foreign exchange market. And foreign exchange market जो है वो बड़ा liquid form of market है. liquid form of market कहने का मतलब बड़ी आसानी से आप किसी भी करेंसी को दूसरी करेंसी में ट्रांजैक्ट कर सकते हैं without any massive change in the existing price. इसीलिए इसको बड़ा liquid market हम लोग कहते हैं. आपने सुना होगा कि अगर ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटीज हो जाती हैं तो लोग या तो गोल्ड की ओर जाते हैं और नहीं तो डॉलर की ओर जाते हैं. वो आखिर क्यों? डॉलर को लोग कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग करेंसीज, और इसलिए वो अपने आप को हेज करने के लिए डॉलर की ओर मूव करते हैं. तो अब आइए हम लोग थोड़ा बहुत संक्षेप में बात कर लें कि आखिर ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में
जो फ्लक्चुएशन होता है जिसको हम लोग करेंसी एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन कहते हैं, वो क्या है, व्हाट इज दिस करेंसी एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन। टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल, यहाँ पे आपको एक करेंसी को बेस मानना पड़ेगा, एक करेंसी को बेस आधार मानना पड़ेगा, और उसके रिस्पेक्ट में आप दूसरी करेंसी को देखेंगे कि वो एप्रिशिएट कर रहा है या डिप्रिशिएट कर रहा। तो हम लोग इंडियन रूपी को अगर बेस माने, इफ वी कंसिडर द इंडियन रूपी एज द बेस, और उसको कंसिडर करें डॉलर के रिस्पेक्ट में, और फिर हम लोग ये देखें कि करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या है। तो सपोज करें कि इफ इन ऑर्डर टू बाई $1 वी इंडियंस आर सपोज टू पे ₹75। अगर $1 परचेज करने के लिए आपको ₹75 पे करना पड़ता है, अभी ये एग्जिस्टिंग रेट है। अब क्या हो रहा है कि इफ नाउ we are supposed to pay ₹76, ₹1 more than what we were previously paying to buy $1, तो आपको इंडियन रूपी एक ज्यादा पे करना पड़ रहा है एक यूनिट ऑफ डॉलर को परचेज करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि आपकी करेंसी यानी कि डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट कर गई। डोमेस्टिक करेंसी में डिप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा, राइट। और डॉलर स्ट्रेंथन हो गया, डॉलर एप्रिशिएट किया। तो जब एक करेंसी एप्रिशिएट कर रही है तो दूसरी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, जो अभी मैंने एग्जांपल बताया। दोबारा से एक बार, अगर अभी फिलहाल $1 परचेज करने के लिए आपको ₹75 पे करना पड़ रहा है, नाउ सपोज टू बाई $1 we need to pay ₹76. We are supposed to pay ₹1 more than what we were actually paying. So this is depreciation of the Indian rupee and appreciation of the US dollar, right? मतलब क्या कि आप अब करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब बहुत सिंपल, एक लाइन में करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि आप पहले जितना पे कर रहे थे किसी दूसरी करेंसी को खरीदने के लिए, अगर उससे ज्यादा आपको पे करना पड़ा उसी करेंसी को खरीदने के लिए, तो वो करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, राइट। नाउ व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन? बहुत सिंपल, डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन क्या है? सिमिलरली अगर आपको एक $, जो अभी मैंने बताया एग्जांपल में कि वी नीडेड टू पे ₹75, नाउ इफ वी आर सपोज टू पे ₹74 फॉर इट, नाउ इफ वी आर सपोज टू पे ₹74 फॉर इट, तो ये क्या हुआ? वी आर पेइंग लेस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी टू बाई 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये जो आप लेस पे कर रहे हैं टू बाई 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन कहेंगे और फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो ये जो फॉरेन करेंसी का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है, फॉरेक्स का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जो हम लोग बात करते हैं, ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? वो वैसे मार्केट में एप्लीकेबल होगा जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ओपन मार्केट की, जहां पे डिमांड सप्लाई का फोर्सेस तय करेगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या हों। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो यहीं तक। आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो ये कि फॉरेन एक्सचेंज है क्या, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, और फाइनली हमने टच किया कि करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है। होपफुली this small video would have been quite helpful for you. Thank you for joining.